ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 1935 ਈਸਵੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਈਸਵੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਅਸੀਂ 1937 ਈਸਵੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1937 ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1937 ਈਸਵੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਣ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ 1100 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ them। ਉਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਏ ਫਸਟ ਮੇਜਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਅਦਾਨੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ
दूसरी सिविल लिबर्टी और तीसरा बेटा जिहड़ा बड़ा प्रमुख मुद्दा सीगा वो है किसानां दा मुद्दा। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी मच फेवर इन द पीजेंट्स केस, जानी उन्होंने तो इत्थों तक कहता सीगा कि जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या इस टाइम हल करन दी लोड़ है वो किसानां दी है, बाकी सारियां समस्यावां दा हल बाद दे विच कड्डांगे। सो वी शुड फोकस ऑन द पीजेंट्स। और इस करके जिहड़ियां उस वेले किसान सभावां बणियां सीगियां उन्हां नूं भी एक उम्मीद जागी कि किसानां दे हितां दी हुण रखिया हो सकेगी। और उहदे लिए एक टेनेंसी लैजिसलेशन लिआंदा गया, यानी उन्हां नूं अपणियां जमीनां दा मालकीना हक जिहड़ा हैगा वो दवाया जा सके। पर इस हक के विरोध दे विच कौन सी? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमीनदार, तालुकदार और गिवन अंग्रेज सरकारां जिहड़ियां इन्हां दी फेवर दे विच नहीं सी। और ये जिहड़े अधिकार भी किसानां नूं मिले वो बेटा स्टेट टू स्टेट डिफर भी करते रहे, क्योंकि स्टेट दे विच जिहड़े लोकां दी पावर जिन्हां कोल सीगी वो जे तां वो जमीनदारां दे नाल सन तो उत्थे वो ये पावरां ये हक किसानां नूं देना नहीं सी चाहते। पर जिहड़ियां बाकी स्टेटां सीगियां उत्थे जिहड़ा जिथे यानी कह लो लैफ्ट विंग ज़्यादा इंपोर्टेंट सीगा या फोकस सीगा, चाहे वो लैफ्ट विंग विद इन कांग्रेस सी या आउटसाइड कांग्रेस सी, उहदे ये किसानां नूं हक मिलण दे विच संभावनावां वधियां और अधिकार उन्हां नूं ज़्यादा मिल सके। उहदे च 3-4 पॉइंट्स बेटा तुसीं नोट कर लो कि खास तौर दे उत्ते बिहार दे अंदर जमीनदारां दे नाल एक पैक्ट साइन किया गया शुरू दे अंदर। उस शुरू दे विच जिहड़ा पैक्ट साइन होया उहदे च बिहार किसान सभा नूं इग्नोर किया गया, जिहदे करके समस्या खड़ी हुई। पर किसानां दे नाल लैफ्ट विंग दे लोग भी सन और कांग्रेस दे लोग भी सिमती रखते सी, और जिस करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दरभंगा दे महाराजा नूं चिट्ठी लिखी कि जे तुसीं इन्हां नूं उन्हां दे अधिकार ना दिते तां तुहाडी भी आलोचना होएगी ते साडी भी आलोचना होएगी। जिस करके अल्टीमेटली जदों ये अधिकार नहीं मिले तां किसान सभावां नूं एजीटेशन लॉन्च करनी पई और लेटर स्टेजिस उत्ते जाके अधिकार लैणे। पर यूपी दे विच बेटा समस्या नहीं आई, क्योंकि उत्थे ज़्यादातर लोग जिहड़े पावरफुल सन वो किसानां दे हमायती सी। इस करके यूपी दे विच किसानां नूं जिहड़े उन्हां दे अधिकार सीगे वो बड़ी छेती पास हो गए और 2 सालां दे अंदर अंदर ही वो अधिकार उन्हां नूं मिलने शुरू हो गए। और बॉम्बे दे विच भी एक अलग इशू सीगा, वो अलग इशू ये सीगा कि बेटा जदों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली तो उदों उन्होंने टैक्स पे नहीं किए, क्योंकि उहदे च कहा गया भी तुसीं सरकार नूं टैक्स पे नहीं करना। तो सरकार ने की कीता, जमीनां खो के जमीनदारां च दे दित्तियां। इस करके जदों उन्हें सरकारां बनियां तो इन्हां ने कहा कि वो जिहड़ियां जमीनदारां नूं सरकार जमीनां दित्तियां गईयां सी वो उन्हां तों वापस लैके जिहड़े उन्हां दे ओरिजिनल ओनर्स ने मालक ने उन्हां नूं दित्तियां जाण। इस करके बॉम्बे दे विच ओरिजिनल मालकां नूं वो जमीनां वापस करवाईयां। इस तरीके दे नाल बेटा दूजियां थावां दे उत्ते और एक इंटरस्टिंग मामला सामने आंदा साडे कोले, उहदा जिक्र करना जरूरी है। उड़ीसा दे विच काली कोटे नाम की एक थां है, उहदा जमीनदार ये साबित करने की कोशिश की कि मैं बड़ा पावरफुल हाँ, तो जिहड़ियां पुलिस दियां वड्डियां लाड़ियां सी, लाड़ियां जिन्हों कह दिंदे आ, उन्हां दी परेड करा के दिखाया कि मेरी चलदी। पर उत्थे भी फिर बाद स्ट्रगल हुई और हौली हौली लोगों नूं जिहड़े किसानां नूं अधिकार मिले। तो यानी कुल मिला के जिहड़ा किसानां दे मसले ते बेटा असीं ये कह सकते हैं कि इन्हां सरकारां दे बनन तो बाद किसानां नूं बहुत सारे प्रांतां विच उन्हां दे हक मिलने शुरू होए, लेकिन कुछ दे विच नहीं मिल सके। बट उहदे बावजूद भी एक गल जरूर सी कि किसानां दे विच जिहड़ी जागृति सी, अवेकनिंग सी, वो वड्डे पੱਧਰ दे उत्ते इन्हां सरकारां दे वजूद दे नाल, इन्हां दे बनन दे नाल वो पैदा हो गई, जिन्हें अल्टीमेटली किसानां दी समस्या नूं हल करन दे विच काफ़ी वड्डी भूमिका निभाई। नैक्सट चौथा पॉइंट साडे कोले आंदा लेबर।
क्योंकि जिथे किसान बड़ा इंपोर्टेंट है उत्थे मजदूर वर्ग भी बड़ा इंपोर्टेंट है। और उस वेले ट्रेड यूनियन जिहड़ियां सीगीआं वो बन चुकियां सी और कांग्रेस ने अपने सैशनां दे विच उन्हां दे अधिकारां दी गल कीती सी। उन्हां दे अधिकार किहड़े सन? नंबर 1 कि जिहड़ी छुट्टी कुछ मिले विद पे, जिवें मान लो बेटा संडे छुट्टी हुंदी है लेकिन संडे की तनख्वाह मिलती है, दैट मीनस हॉलीडे विद पे, यानी तनख्वाह नहीं कट्टी जाए छुट्टी वाले दिन की। दूसरा अंपलॉयमेंट इंश्योरेंस कि जे काम करते करते बंदे नूं कोई सट वज गई और उस तो बाद वो काम नहीं कर सकता तो उसका बीमा किया जाए, ताकि बाद दे विच उहदे परिवार नूं रोजी रोटी चलाउण दे विच किसी समस्या का सामना ना करना पवे। तीसरा, जे बंदा बीमार पै जांदा जिन्होंने तुसीं अजकल मैडिकल लीव कहने हो, तो उस बीमारी की भी कुछ छुट्टी उसनूं दित्ती जाए विद पे। चौथा, काम करन दे और प्लस काम करन दे बदले जो तनख्वाह मिलती है उसकी एक घट्टो घट्ट सीमा निश्चित की जाए भी इन्ने पैसे तो देने ही हैं। जिवें फॉरन च जाओ तो उत्थे घट्टो घट्ट $10 या $8 एक घंटे दे मिनीमम वेजिस ने जो हर एक बंदे नूं देने ही पैणगे। हाँ उदों वध दे सकदा 12, 14, 15, 18 काम के अनुसार, पर $8 तो घट वो नहीं दे सकता। ये चीज़ां उन्होंने पास कीतियां सी और इन्हां नूं हुण उन्होंने अलग अलग प्रांतां दे विच अलग अलग कानून बना के जिहड़े हैगे लागू करने बेटा शुरू कीते। बॉम्बे दे विच, मद्रास दे विच और दूजियां स्टेटां दे विच बेटा कीते गए। और हालांकि कई थावां दे उत्ते बेटा एजीटेशन भी हुई और एजीटेशन नूं कुचलण की कोशिश भी की गई। जिवें एग्जाम्पल के तौर के उत्ते बेटा लिख लो, बॉम्बे के अंदर वर्करस ने जिहड़ा बेटा एजीटेशन की, क्योंकि उत्थे इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। किसान मजदूरों ने इसका विरोध किया भी इहदे नाल साडीआं हड़तालां दे उत्ते रोक लग रही है और ये हड़ताल ही पूंजीवादियों के खिलाफ साडे कोले सब तो वड्डा साडा हथियार है, क्योंकि असीं वायलेंस करते नहीं। अखीर उत्थे सरकार ने पुलिस बुलाई और पुलिस एक्शन दे विच बेटा 20 मजदूरों की ईवन मौत हो गई। ऐदां ही कानपुर दे विच बेटा 24,000 वर्करस ने 1937 विच हड़ताल की थी। और उत्थे भी सरकार ने कहा भी तुसीं हड़ताल वापस लो, पर जदों उस हड़ताल वायलेंट होने लगी तो ईवन नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि अगर वायलेंस की तो सरकार नूं अपनी आर्मी और पुलिस बुलानी पेगी और ये उम्मीद ना रखना कि सरकार फौज ते पुलिस नहीं बुलाएगी। तो वर्करां नूं ये याद रखना चाहिए, यानी वार्निंग्स भी उदों इशू हुई जिथे वायलेंस होने की संभावना हुई कि जिहड़ी सरकार और पावरफुल हुंदी है तो हिंसा नूं हिंसा दे नाल कुचल दिता जाए। पर अल्टीमेटली वो ये बिल वापस कराने दे विच बेटा डिस्प्यूट नूं सैटल करन च कामयाब होए। बंगाल दे विच कांग्रेस ने जूट मिलों की स्ट्राइक की सपोर्ट की और ईवन जमशेदपुर दे विच जिथे टाटा की इंडस्ट्री सी, टाटा के मालकां ते मजदूरां विच समझौता कराने दे विच रोल अदा किया। तो यानी मजदूरां दीयां समस्यावां दे उत्ते भी कुछ ना कुछ काम जिहड़ा है होना शुरू होया। नैक्सट बेटा 5वां पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। होर किहड़े प्रोग्राम्स किए गए, जिवें 2 लाख रुपया बेटा खादी दे लई जिहड़े हत्थ नाल बुनन वालियां इंडस्ट्री सीगी उन्हां लई सैंक्शन कीते गए। हस्पतालों दे विच डॉक्टरां दा प्रबंध किया जाना शुरू होया। जिहड़ियां आम जनता सरकारी इमारतां दी इन्वेस्टमेंट सीगी उहनूं घटाया गया। नवीं एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई बेटा, जिन्होंने वारदा स्कूल ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो वारदा सम्मेलन तो बाद होंद दे विच आई सी। उसका मतलब की सीगा, जिन्होंने तुसीं अजकल भी देखते हो 7 साल लई मुफ्त ते कंपलसरी एजुकेशन देना, जिवें साडे वो की ना 14 साल तक
भी हर बच्चे ने पढ़ना जरूरी है और उन्हें फ्री पढ़ाया जाएगा सेम वे। और पढ़ाਉਣ ਦਾ शुरुआत ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ। और वोकेशनल ਤੇ मैनुअल ट्रेनिंग ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। तो इस करके एजुकेशन के उत्ते भी एक वड्डे पद्धर के उत्ते बेटा जोर दिता गया। और उस तो बाद तुसी एक छोटा जिहा आंकड़ा लिख लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ये गल कहनी अच्छी लगेगी अपने जो असीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल कि बॉम्बे के अंदर 1936-37 च जिहड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीगे स्कूल कॉलेज, उन्हां दी गिनती सी 14,609। 2 सालां च ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18,729 करता गया। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 13,35,899। ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵਧਾ ਕੇ 15,56,441 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस तो इलावा उन्होंने जिहड़े सरकारी कांग्रेस के मंत्री सीगे जां दूजियां सरकारां दे, उन्हां दीयां तनखाहां घटाइयां ताकि आम जनता दा उत्ते बोझ ना पवे। दूसरा, जिहड़े कबीले ने उन्हां दी भलाई दे काम शुरू कीते। फंडामेंटल राइट अनाउंस किए भी, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट ने जिन्हों कोई भी खो नहीं सकता, क्योंकि जेलों च हिंदुस्तानी सन, इस करके जेलों नूं सुधारन की गल भी की गई। और नाल कहा गया कि व्यापारिक ते आर्थिक सर्वे कराए जान ताकि सानू एग्जैक्ट पोजीशन पता लगे और उहदे बेसिस दे उत्ते नवे कानून बनाए जा सकन। और ये नहीं है कि बेटा सरकारां जिहड़ियां अपना काम उस वेले करदियां रहियां वो बड़ी आसानी नाल करदियां रहियां। नो, उन्हां नूं बहुत औकड़ां दा सामना करना पिया। प्रोपोगंडा हुंदा सीगा जी मिनोरिटी नाल ज्यादती करदे ने, जिद्दां अजकल विरोधी पार्टियां करदियां, उस वेले भी ये प्रोपोगंडा लगातार हुंदा रहा, फाल्स प्रोपोगंडा भी हुंदा रहा। और जिद्दां असीं देखते हैं कि जदों पावर आती है तो जिहड़े मौकाप्रस्त लोग ने सरकारां 'च शामिल हो जाते हैं, उस वेले भी ये होया। इन्हां मंत्री मंडलों के विच जिहड़े मौकाप्रस्त लोग भी शामिल होए। और गांधी जी ने उस वेले अपने समाचार पत्र हरिजन च ये गल लिखी कि ये मौकाप्रस्तां दे आउण दे नाल कांग्रेस विच ईवन भ्रष्टाचार आ चुका है तो कांग्रेस नूं इहदे ते पछतावा होएगा, उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए है और इस तो बचना चाहिए, चाहे उन्होंने अपनी सरकारां सी। और इस दौरान बेटा 2 कांग्रेस के सैशन होए। 51वां सैशन होया हरीपुर दे विच फरवरी 1938 च, जिसते उस वेले प्रेजिडेंट सीगे, याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेजिडेंट। और उस तो अगला सैशन होया 1939 त्रिपुरी च। इस इलैक्शन दे विच सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडीडेट सीताबाई पिता रमैया नूं 1580 के मुकाबले 1377 वोटां नाल हराता। और गांधी जी ने कहा भी मेरी हार है, तो उन्होंने अपने सारे बंदियां नूं कहा पिछे हट जाओ। तो बोस के, क्योंकि लोग बोस नूं तां पसंद करते सी बट गांधी जी नूं छड्डना नहीं सी चाहते, इस करके सुभाष चंद्र बोस नूं अपनी कार्यकारिणी बनाने च दिक्कतां आईयां तो अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस ने प्रेजिडेंटशिप तो रिजाइन कर दिया। और बाद दे विच असीं देखदे हां कि जदों 1939 च बेटा सैकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, अंग्रेज़ां ने डिकलेयर कर दिता कि इंडिया भी उहदे विच पार्टिसिपेट कर रहा है विदाउट कंसल्टिंग दीज मिनिस्ट्रीज़। तो इन्हां नूं लग्या कि ये साडे वजूद उत्ते सट है और इन्हां कांग्रेस के मंत्री मंडलों ने
ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 35 ਦਾ ਐਕਟ ਔਰ 37 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ